Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 6 subject SS. We are dealing with civics chapter number 1 diversity, and this is my session number 2 for this chapter. So kids, in previous session we have already learned that diversity is the way of life. Every person is different from the other person. Every nation is different from the other nation. We have differences in opinion, difference in thinking, difference of gender, and we have to accept these differences, respect each other's difference, and then the life will become smooth. We have already dealt with this last. Right? So now, in today's session, we are going to learn regarding the differences that we find in our country, in our own country, that is India. So we will learn regarding India, the land of great diversity. You have many differences in India. Linguistic diversity means difference in language. Religious diversity. We have different religions. Then food and festivals. We have different types of foods, different types of festivals are celebrated here. Then geographical and cultural. Geographical. Some people live in desert, some people live in coastal area. Some people live in the plateau region, some people live in the mountainous region. Right? So we have all these differences. So we are going to deal with that today. And the last topic is unity in diversity. That we will look in today's session. So let us start today with India, the land of diversity. India is a land of great diversity, where we Indians, despite of differences, have lived harmoniously for centuries. We have lots of differences, but still we all are living together in harmony. Harmony means without any conflicts, without any fights. Correct? We are all living since many years. Our ancestors have also lived here, but still there were no differences. There were no conflicts. Right? Then, we worship different gods, eat a variety of food, celebrate different festivals, and speak various languages. Isn't it? Don't we do that? Don't we worship many gods? Muslims, they pray to Allah. Christians pray to Jesus or Mother Mary. Then Hindus have many gods. Gods and goddesses. Right? Still, we are living together. We do pray, but we have our own God. We have our own God. We eat different varieties of food. You already know, you have already learned that the staple food of different regions in India is different. North Indians prefer to eat wheat more. But South Indians, they prefer to eat rice more. Right? So we eat different varieties of food. Gujarati's food is different than the Punjabi's food. Punjabi's food is different from South Indian food. So all these differences in food is there in India. Then we have celebrated different festivals. Hindu festivals like Holi, Diwali, Raksha Bandhan, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, and many more. Christians have their own festival like Good Friday, Easter, then Christmas. Yes, of course, how can we leave that? Santa Claus comes, right? So Christmas, that is Christian festival. Muslims have their festivals like Eid, Muharram, etc. So all these are the festivals. They are for different religions, but still
In India, all these people live together in harmony. शांति से रह रहे हैं. Then we also speak different languages. You might be aware of 3 languages very fluently. 3 languages आपको भी एकदम fluently आती होगी. First one is your mother tongue, Gujarati. Other one, the national language of India, that is Hindi. And third one, which is the international language, it is English. तो 3 लैंग्वेज तो आपको भी आती है. But you have Marathi, that is in Maharashtra people speak Marathi. Karnataka, they have Kannada. Then Goa, they have Konkani, Goan Konkani. So there are different languages in India. Correct? So all these are the differences. Yet there are so many things that we do identically. But ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम identically means एक जैसी करते हैं. We are similar. You all students of class 6, you belong to different culture maybe. अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, करेक्ट, कोई ब्राह्मण है तो कोई और कास्ट का है. बट देयर आर सम आइडेंटिकल थिंग्स इन यू. जैसे कि आप रोज सुबह स्कूल आते ही हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी एरिया में रहते हो, कोई भी लैंग्वेज घर पे बोलते हो, बट रोज सुबह स्कूल आना है तो आते ही हो. करेक्ट? सो दीज आर द आइडेंटिकल थिंग्स, मीन्स जो कॉमन थिंग्स है उनको आइडेंटिकल थिंग्स कहते हैं. सो देर आर मेनी आइडेंटिकल थिंग्स विच वी डू हैव इन इंडिया. ओनली अवर वे ऑफ डूइंग देम आर डिफरेंट. सिर्फ करने की जो हमारी रीत होती है ना, वो अलग अलग होती है. जैसे कि नवरात्रि सेलिब्रेशन है. नवरात्रि इंडिया में नॉर्मली हर जगह हर हिंदू सेलिब्रेट करते ही हैं, बट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इज डिफरेंट. जैसे कि गुजरात में डांडिया खेला जाता है, बट इज इट नेसेसरी कि इंडिया के हर पार्ट में डांडिया ही खेलते हैं नवरात्रि पे? नो. वेस्ट बंगाल में तो नवरात्रि में दुर्गा की पूजा की जाती है, दशहरा मनाया जाता है, वहां डांडिया नहीं खेलते हैं. बट वो लोग भी नवरात्रि ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम भी नवरात्रि ही सेलिब्रेट कर रहे हैं. बट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग दैट डिफर्स. रीत अलग अलग हो सकती है, मगर सेलिब्रेशन तो होता ही है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल ही दिया. इस तरह से कई चीजें ऐसी है जो हम सारे लोग करते तो है, बट सारे अपने अपने तरीके से करते हैं. वी डू इट इन अवर ओन वे. द वे ऑफ डूइंग इट इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी इन इंडिया. तो इंडिया में डाइवर्सिटी जो है उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंसेस को. फर्स्ट वन, दैट इज डाइवर्सिटी इन इंडिया इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर डाइवर्सिटी को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है. इंडिया एज ए नेशन इट इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डिफरेंसेस है, बट स्टिल वी आर वन, वी आर यूनाइटेड, हम एक हैं. This phrase was coined by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. ये phrase unity in diversity, इसको सबसे पहले किसने कहा था? It was the first Prime Minister of India, that is Jawaharlal Nehru जी. उन्होंने इसे सबसे पहले कहा था, that is unity in diversity. Many kinds of diversity occur in India, such as कौन कौन सी डाइवर्सिटीज है? डिफरेंसेस. लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है, रिलीजियस, जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज आर प्रिवेलिंग इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज है. हमने पहले भी डिस्कस किया, फूड हैबिट, क्लोथिंग हैबिट, फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेट, ऑल आर डिफरेंट. नाउ फर्स्टली लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज से रिलेटेड डाइवर्सिटी. India has a diverse list of spoken languages. Spoken, written नहीं, spoken languages. क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बोली तो जाती है मगर उनके लिए लिटरेचर नहीं है.
जैसे इंग्लिश आप बोलते हो तो इंग्लिश लिखना भी पॉसिबल है, एबीसीडी आपको आती है तो, बट एबीसीडी अगर किसी ने बनाई है तो एबीसीडी का इन्वेंशन हुआ और आप लिख पाते हो। मगर इंडिया में कई ऐसी लैंग्वेजेस है जिनकी लिपि मतलब उनका लिटरेचर ही नहीं है। बोलने में लैंग्वेजेस है बट उनका रिटन लिटरेचर वर्क नहीं है, लिपि नहीं है। ओके, सो इंडिया इज अ डाइवर्स लिस्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस, एटलीस्ट 8,000 लैंग्वेजेस and 2,000 dialects have been identified। 8,000 लैंग्वेजेस हैं and 2,000 डायलेक्ट्स है इंडिया में। Of these, 22 languages have been recognized by the Constitution of India। इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। Some of these national languages include, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से कुछ लैंग्वेजेस जो नेशनल लैंग्वेजेस है वो कौन कौन सी है? हिंदी, गुजराती, मणिपुरी, शांतली, तेलुगु एंड उर्दू। ऑल टुगेदर 22 है, यहां पर सिर्फ कुछ नेम्स ही दिए गए हैं। नाउ they have also given an additional information, that is you have to find out 22 languages recognized by the Constitution of India। तो आप एक बार गूगल में सर्च करके देख सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया की वो कौन कौन सी। यहाँ पर 5 to 6 लैंग्वेजेस के नेम्स आपको दिए गए हैं, तो आपको अगर चाहिए तो आप गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हो। One would think this variety of languages would make it difficult to communicate। किसी के भी दिमाग में आएगा कि इतनी सारी लैंग्वेज है तो एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? क्या सारे लोगों को ये 8,000 है तो 8,000 सारी लैंग्वेज आती है? तो कोई और है तो ये सोचेगा कि अरे 8,000 लैंग्वेज है तो ये लोग एक दूसरे के साथ बात कैसे करते हैं? Which language they are using to communicate? You might think that it is difficult, right? No, but it is not difficult. But on the contrary, respect for each other's language and knowledge of the common language like Hindi or English help people to communicate with each other। But यहाँ इंडिया में एक दूसरे की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट भी करते हैं और जो कॉमन लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, उसको भी ध्यान में रख के सारे लोग ये कॉमन लैंग्वेज तो सीखते ही है या बोलते ही हैं। सपोज आप अगर सिर्फ अपनी मदर टंग गुजराती बोलोगे, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल सीखोगे ही नहीं, बोलोगे ही नहीं, तो क्या होगा? दूसरे इंसान को शायद मराठी आती है, उसको गुजराती, हिंदी, इंग्लिश कुछ नहीं आती, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। बट यहाँ क्या हुआ है इंडिया में, आपको हिंदी के अलावा गुजराती के अलावा हिंदी इंग्लिश आती है। सिमिलरली महाराष्ट्र के लोगों को मराठी तो आती ही है क्योंकि वो उनकी लोकल लैंग्वेज है, बट उसके साथ वो लोग भी हिंदी एंड इंग्लिश को जानते हैं। तब क्या होगा, आपके अंदर जो दो और लैंग्वेजेस आपको आती है, हिंदी इंग्लिश, और उनको भी हिंदी इंग्लिश आती है, तो ये बन गई आपकी कॉमन लैंग्वेज। नाउ यू कैन टॉक टू ईच अदर एंड कम्युनिकेट, करेक्ट? तो ऐसी कॉमन लैंग्वेज भी हम सीख लेते हैं। अपनी लैंग्वेज के साथ साथ कुछ कॉमन लैंग्वेजेस को भी हम यूज करते हैं। So that is why communication becomes easier and we can communicate. Next is religious diversity. India is probably the only nation in the world to have such variety of religions। यहाँ इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज, all these, right? It is birthplace of several religions such as Hinduism, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म। ये सारे जो हैं वो यहीं के ओरिजिनेटेड रिलीजन्स हैं, इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं ये सारे रिलीजन्स। इट इज अमंग द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड विद द साइजेबल ज़ोरास्ट्रियन पॉपुलेशन। यहाँ साइजेबल मतलब एक स्मॉल पार्ट इज ऑल्सो ज़ोरास्ट्रियन पॉपुलेशन। ज़ोरास्ट्रियन पॉपुलेशन होते हैं
जैसे बुद्धिस्ट होते हैं वैसे ज़ोरास्ट्रियंस भी होते हैं, तो यहाँ इंडिया में ये लोग भी हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ चर्च, टेम्पल, मस्जिद, स्तूपास, गोम्पास and dargah reflect the amazing multiplicity of religious practices in India. आपने देखी ही है, चर्च देखी होगी, मस्जिद देखी होगी, टेम्पल्स देखे होंगे, कुछ दरगाह भी देखे होंगे, करेक्ट? तो ये सारे प्लेसेस आपने अगर देखे, दैट मीन्स कि इन सारे रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं और वो वहां प्रे करने जाते हैं। सो जस्ट थिंक कि कितने रिलीजन्स ऑलरेडी आपने देखे हैं। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन फूड एंड फेस्टिवल, खाने पीने की, देन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने की भी अलग अलग डाइवर्सिटीज है। इंडिया फेस्टिवल्स एंड फूड स्पीक ऑफ इंडियाज रिच कल्चर एंड ट्रेडिशनल बैकग्राउंड। यहाँ के फेस्टिवल और यहाँ के फूड बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, पूरी वर्ल्ड में अब इनको सेलिब्रेट किया जाता है। आपने देखा होगा कि नवरात्रि का फेस्टिवल अमेरिका में, यूरोप में भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो गुजराती या इंडियंस वहां गए वो वहां भी सेलिब्रेट करने स्टार्ट कर दिए, और अब तो वहां के जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी उसमें पार्ट लेते हैं। दे आर ऑल्सो गेटिंग इंटरेस्टेड। एंड फूड, इंडियन फूड इज एक्सट्रीमली फेमस वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्पाइसेस। Every region has its own food preparation depending on the kind of food available locally. हर एक रीजन में जो फूड लोकली अवेलेबल है उससे वो कोई ना कोई स्पेशल डिश बनाते ही हैं। Every place of India has their own special dishes. Kerala, for example, have several dishes made out of coconut, which is easily available in the area. साउथ इंडिया कोस्टल एरिया में कोकोनट इजीली अवेलेबल है, केरला में, कर्नाटक में, ऑल दीज साउथ इंडियन प्लेसेस, कोस्टल एरियाज, कोकोनट इज इजीली अवेलेबल। सो वो लोग कोकोनट से वैरायटी ऑफ डिशेस बना सकते हैं यूजिंग दिस कोकोनट। पीपल सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर लोकल कस्टम एंड रिचुअल। हर एक फेस्टिवल को वो अपने ही तरीके से सेलिब्रेट करते रहते हैं। द कॉमन एलिमेंट इन ऑल the celebration is that they celebrate humanity. सबसे कॉमन क्या है कि हर इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा फेस्टिवल है, फॉर एग्जाम्पल हिंदूज का फेस्टिवल है, दैट विल नॉट हार्म टू द मुस्लिम कम्युनिटी। उससे मुस्लिम को कोई हार्म नहीं होता, और मुस्लिम्स के जो फेस्टिवल्स है उससे क्रिश्चियंस को कोई हार्म नहीं होता। They celebrate it with their own humanity and harmony. शांति से वो भी अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम भी अपने करते हैं। There is no conflict. Some of the common rituals which are followed in the most of the festival are common rituals जो almost सारे festivals में होते ही हैं। That is procession in the street. रास्ते पर processions निकालना, हिंदूज भी निकालते हैं, मुस्लिम्स भी निकालते हैं, ताजिया है, क्रिश्चियंस भी निकालते हैं कभी कभी क्रिसमस के वक्त, करेक्ट? सो दैट प्रोसेशन कॉमन रिचुअल सारे रिलीजियस के लोग करते हैं। देन डेकोरेशन ऑफ होम एंड सीक्रेट प्लेसेस। मुस्लिम फेस्टिवल है तो वो मस्जिद को डेकोरेट करेंगे, हिंदू फेस्टिवल है तो वो अपने घर को और टेम्पल को डेकोरेट करेंगे। सिमिलरली क्रिश्चियंस है तो वो लोग अपने घर को एंड चर्च को डेकोरेट करेंगे क्रिसमस के वक्त। सो दैट इज कॉमन रिचुअल, राइट? सारे लोग करते ही हैं। देन यू हैव ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स एंड डांस परफॉर्मेंसेस। अपने अपने ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स होते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं अपने अपने तरीके से। स्पेशल डिशेस, फ्लावर्स एंड लाइट्स, इन सारी चीजों को मिला के ये सारे कॉमन रिचुअल्स है जो सारे के सारे लोग करते ही है। वैसे डाइवर्स है बट देखा जाए तो सेलिब्रेशन का तरीका सेम होता है। हम हिंदू लोग अपने फेस्टिवल में डेकोरेट करते हैं घर को, मुस्लिम अपने फेस्टिवल में डेकोरेट करते हैं, बट डेकोरेट तो करते ही है, दैट इज कॉमन। नाउ डेकोरेशन करना इज कॉमन, राइट? सो नाउ मूविंग ऑन टू ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। India has a great variety in landform.
You already know there are 6 physical divisions, right? Desert, plateaus, plains, islands, mountains, etc. So India has a great variety of landform, which in turn has shaped its culture. और इसकी वजह से इंडिया का कल्चर भी अलग अलग होता है. In the north and east, we find Himalayas and the 3 perennial river streams, that is Ganga, Brahmaputra and Indus. The west is marked by rough terrain and the desert. वेस्ट की तरफ रफ टेरियन, उबड़ खाबड़ जमीन है और डेजर्ट रीजन है. While in the south we have coastal region. साउथ में कोस्टल रीजन है. These geographic divisions have had a lasting influence on the eating habits, clothing, custom and economic activities of the region, given rise to diversity. और इन डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पर डिविजन्स या डाइवर्सिटीज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन माउंटेन एरिया ऑफ लद्दाख डिपेंड ऑन शीप, गोट एंड काउ फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. क्योंकि वहां वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, स्नो कवर्ड एरिया है लद्दाख नॉर्थ में, हिमालयास में, तो इसीलिए वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए. सो दे डिपेंड ऑन sheep, goat and cow for their food requirement. As very little agriculture is possible here, they wear warm clothes throughout the year. The main source of their earning is wool. और ये पैसा कैसे कमाते हैं? वूल से. शीप्स के ऊपर के जो हेयर है ना उसको निकाल के वूल बनाते हैं, जो गर्म कपड़े बनाने में काम आता है. इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब इससे ऑपोजिट अगर आप देखें तो पीपल इन तमिलनाडु, ये लद्दाख का ऐसा है, बट तमिलनाडु में कैसा है? अ कोस्टल स्टेट सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड. ये कोस्टल स्टेट है जो एक साइड सी से सराउंडेड है, करेक्ट? एंड द हिल्स ऑन द अदर. तमिलनाडु में एक साइड बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ जो है वो ईस्टर्न घाट्स है, बीच में तमिलनाडु आ जाता है. सो इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड द hills on the other. They practice agriculture and fishing. ये एग्रीकल्चर और फिशिंग करते हैं. यहाँ उनका काम ये वूल का नहीं है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम वूल नहीं है. They have agriculture and they have fishing. Their main food include rice, vegetable and fish. क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है, सी में से फिश निकाल लेते हैं. वेजिटेशन है, ग्रो करते हैं बहुत सारी चीजें, तो वेजिटेशन है. सिंस द टेम्परेचर हियर इज मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर, दे वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स. यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ठंडी नहीं रहती है, गर्मी भी नहीं रहती है. सो दे हैव लाइट कलर्ड क्लोथ्स. ईच रीजन एंड द स्टेट हैज कार्व्ड आउट इट्स ओन कल्चरल नाइच. तो यहाँ हर एक स्टेट के, हर एक लोगों के अपने अपने कल्चरल तरीके होते हैं. However, the regional and cultural diversity in India is a result of not only its geography but also its history. ये जो डिफरेंसेस है यहाँ, इससे इसकी ज्योग्राफी नहीं बट इसकी हिस्ट्री भी इंडिया की बहुत डिफरेंट टाइप की है. Foreigners from various parts of the world came and settled down in India. बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ आकर सेटल हुए हैं. दे ऑल्सो एडेड टू द कल्चरल डाइवर्सिटी. और वो जब यहाँ आकर सेटल होते हैं और उनका कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी वजह से भी इंडिया में अलग अलग कल्चर अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है. दे ब्रॉट विद देम देयर ओन कस्टम्स एंड प्रैक्टिस विच इंटरमिंगल्ड विद द एग्जिस्टिंग वंस, गिविंग इट अ कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर. जो हमारा यहाँ का कल्चर था उसके साथ फॉरेन का कल्चर थोड़ा मिक्स हो गया एंड दे इंटरमिंगल्ड, एक दूसरे के साथ मिक्स होके कुछ नया कस्टम बनना स्टार्ट हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, द मुगल्स ब्रॉट विद देम द पर्शियन लैंग्वेज विच मर्ज्ड विद हिंदी. मुगल्स जब यहाँ इंडिया में आए तब वो पर्शियन लैंग्वेज यूज करते थे, और यहाँ इंडिया में आने के बाद
पर्शियन लैंग्वेज हिंदी के साथ मर्ज यानी मिक्स होने लगी. पर्शियन एंड हिंदी लैंग्वेज गॉट मर्ज एंड इट गेव रीज टू अ न्यू लैंग्वेज दैट इज उर्दू. और इससे बनी नई लैंग्वेज जो है उर्दू. उर्दू इज मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी लैंग्वेजेस. It became the lingua franca of India under the Mughals and even today is one of the official language. तो ये जो है उर्दू अब यहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी मानी जाती है. बट ओरिजिनली इट इज मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी लैंग्वेज. To understand how geographical and historical factors affect the diversity of an area, let us look at how life exists in two different parts of the country, that is Kerala and Ladakh. यहाँ नीचे आपको केस स्टडी में केरला एंड लद्दाख से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है. इनको आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह से डाइवर्सिटी होती है. करेक्ट. ये जो है केस स्टडी वो आपको करनी है. आपको इसे कंपल्सरी करनी है क्योंकि आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज केस स्टडीज. आई वांट टू नो हाउ गुड यू आर इन डूइंग योर केस स्टडी. मुझे भी ये जानना है कि आप केस स्टडी किस तरह से कर रहे हो. So you have to do that, okay? I will ask questions from this case study in your exams as well. Exams में भी मैं ये case study आपसे करवाऊंगी. Am I clear? Okay. Now, unity in diversity. What is unity in diversity? As Pandit Jawaharlal Nehru told, he had coined this phrase, right? So what is unity in diversity? Yes, unity means ekta. Diversity is differences. So we are united. Though there are many differences, we are still united. So Pandit Jawaharlal Nehru described India as a geographical and economic entity. A cultural unity amidst diversity. A bundle of contradictions held together by strong visible thread. बहुत सारे contradictions मतलब varieties है, differences है, but they are all held together with thread. But हम फिर भी एक ही धागे से बंधे हुए हैं. Presence of diversity means there would be conflict. Presence of diversity that means differences है, इसका मतलब 100% conflict होगी, लड़ाई झगड़ा होगा. ऐसा हम मान के चलते हैं. घर में अगर दो बहनें हैं या दो भाई हैं, उनके थिंकिंग में भी डिफरेंस है तो झगड़ा हो जाता है. सो वेयर देयर इज डाइवर्सिटी देयर इज कॉन्फ्लिक्ट. झगड़ा होता ही है, राइट. बट इट शुड नॉट हाउएवर बी अलाउड टू बिकम द वीकनेस. बट ये जो हमारे अंदर डाइवर्सिटी है ना, उसको हमारी वीकनेस नहीं बनाना है. झगड़ा होता है, हर कहीं पर झगड़ा होता है, बट इस झगड़े को बढ़ाना नहीं है, किसी एक को छोड़ देना है. और अगर वो भी नहीं हो पाता तो दोनों को बैठ के यू हैव टू डिस्कस इट एंड कम टू कॉमन पॉइंट. एक कॉमन पॉइंट पर आ जाओ कि चलो तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, ये हम कॉमन रखते हैं, विच यू ऑल्सो एग्री एंड आई ऑल्सो एग्री. सो कम टू अ कॉमन पॉइंट एंड देन द कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर. झगड़ा खत्म हो जाता है. क्योंकि अगर हम इस डाइवर्सिटी को और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? What will happen? Somebody else might take the advantages of this diversity. जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था. कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हम अंदर अंदर झगड़ा करते रहे और क्या हुआ? पूरा देश ब्रिटिशर्स के हाथों गुलाम बन गया. That means दो लोगों के झगड़े में किसी तीसरे ने फायदा उठाया. अब क्या करना है? झगड़े को छोड़ देना है, उसको लंबा नहीं खींचना है. छोड़ दो, झगड़ा करके क्या मिलेगा, राइट? सो वी शुड नॉट मेक दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दिस डाइवर्सिटीज अवर वीकनेस. हमें अपनी वीकनेस नहीं बनाना है इस डाइवर्सिटी को. रादर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ. बट इस
डाइवर्सिटी के बारे में अगर बात करें, डाइवर्सिटी इन द फूड हैबिट्स, तो आप कहोगे कि मुझे तो रोज गुजराती ही खाना है, देन दैट इज योर वीकनेस। क्योंकि आप गुजरात से बाहर घूमने जाओगे तो क्या खाओगे? गुजराती फूड नहीं मिला तो क्या करोगे? दैट इज योर वीकनेस। रादर दिस डाइवर्सिटी मेक इट योर स्ट्रेंथ, कि मुझे आप इंडिया में या कहीं भी दुनिया में लेकर जाओ, मैं कुछ भी खा लूंगा, मैं अपना पेट कैसे भी भर लूंगा। मैं साउथ इंडियन भी खा सकता हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन भी खा सकता हूँ, मैं राइस भी खा सकता हूँ, मैं रोटी भी खा सकता हूँ, मैं नूडल्स भी खाऊंगा, पास्ता भी खाऊंगा। आई हैव नो इश्यू। सो दिस डाइवर्सिटी दैट टाइम बिकम्स योर स्ट्रेंथ। ये अब आपकी स्ट्रेंथ बन गई, राइट? सो इन दिस वे डोंट मेक दीज डाइवर्सिटीज योर वीक पॉइंट, they should rather become your strength. You should become more strong with diversity. So now you can say India is a very strong country because it has a lots of diversities and still we are one. So strongest country in the world you can say is India. क्योंकि इतनी डाइवर्सिटीज के बावजूद अगर हम एक हैं, जो दुनिया में किसी और कंट्री में नहीं मिलेगी। अगर किसी और कंट्री में इतनी डाइवर्सिटीज होती ना तो शायद अब तक वो लोग लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग हो जाते, बट इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हम फिर भी इंडियंस ही हैं और झगड़ा नहीं करते। थोड़ा बहुत नेबर्स के साथ झगड़ा हो जाता है, पर 2-3 दिन बाद वो ठीक भी हो जाता है। उसको हम वीक नहीं कंसिडर करेंगे, टेक इट एज अ स्ट्रेंथ। एज हैज बीन सीन इन द preceding phrases, despite of multiplicity of religion, बहुत सारे रिलीजन्स भी अलग अलग हैं, लैंग्वेजेस, कास्ट, रीजन्स एंड कल्चर, there has always been an underlying unity in India. इतने डिफरेंसेस के बावजूद कहीं ना कहीं यूनिटी तो है ही है इंडिया में। अंडरलाइन मतलब इन सारों के नीचे से एक यूनिटी का छोटा सा पार्ट तो है ही। ऊपर से चाहे कुछ भी दिखे, बट नीचे से भी है यूनिटी, दैट इज अंडरलाइन, करेक्ट? सो बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब द एसिमिलेट डिफरेंस कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों ऐसा है? क्योंकि इंडियंस के अंदर ये एक सारे डिफरेंसेस को एब्सॉर्ब करने की ताकत है। वी हैव दैट इन आवर ओन सेल्फ, वी कैन डाइजेस्ट एनीथिंग। आप मेरे बारे में कुछ खराब बोलो, नॉट एन इश्यू। आप मेरे बारे में अच्छा बोलो, नॉट एन इश्यू। आप मेरे से बात करो तो भी ठीक है, नहीं बात करो तो भी ठीक है। वी कैन एब्सॉर्ब दैट। इंडियंस आर सच पीपल, वी कैन एब्सॉर्ब एनीथिंग। जो भी हमें भगवान देते हैं हम उसको स्वीकार लेते हैं। सो वी कैन एब्सॉर्ब एवरीथिंग दैट इज बीन कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस। सो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स हैव मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और यहाँ इस तरह के लोग हैं कि जो सारे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं और इसीलिए इस कंट्री का डेवलपमेंट भी फास्ट हो रहा है। During our freedom struggle, people from different backgrounds worked together against British policy to divide and rule. So British की जो पॉलिसी थी divide and rule, मतलब झगड़ा कराओ। जब दो लोग झगड़ते हैं तब हम खुद राजा बन के उनके ऊपर रूल करते हैं। तो ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स की थी। दो लोगों में अंदर अंदर झगड़ा करा था और फिर राजा कौन बनता है? ब्रिटिश, करेक्ट? तो इस पॉलिसी को इसी वजह से हम तोड़ पाए, क्योंकि फिर हमने क्या किया, कितने भी डिफरेंस हो हम एक हो गए। और तब वीक कौन हो गया? ब्रिटिश। सो दिस वाज द थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कि हम एक हो गए। इन स्पाइट ऑफ द रिलीजियस, linguistic and regional diversity, we came together as a nation to fight the British and become an independent nation. इतनी सारी डाइवर्सिटीज के बावजूद हमने एक साथ एक होके ब्रिटिशर्स से फाइट किया और हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गए।
नेशनल इंटीग्रिटी लाइज इन यूनिटी। नेशन का हित कहाँ है? उसकी यूनिटी में, एकता में। हित मतलब उसका पावर, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है? उसके लिए अच्छा क्या होगा? किसी भी नेशन के लिए अच्छा क्या है कि वहां के लोग एक होकर रहे। सो द होल कंट्री इज बाउंड एज अ civilization due to its common history, thereby preserving the national identity. आज हमारा पूरा कंट्री यूनाइटेड है। We have common history, क्योंकि आज हम हिस्ट्री में राजा महाराजाओं के बारे में स्टडी करते हैं, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सारे इंडियंस के लिए है, ये सारे इंडियंस के लिए है, चाहे वो किसी भी रीजन का हो या रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो। बट ये फ्रीडम स्ट्रगल है, यहाँ कौन कौन किन किन एम्परर्स ने रूल किया, ये सारी हमारी हिस्ट्री जो है, इट इज बिलोंगिंग टू द होल नेशन। वी आर ऑल कॉमन, वी आर ऑल वन, एंड दिस गिव्स एन आइडेंटिटी टू अवर नेशन। और इस वजह से हमारा नेशन एक अलग ही आइडेंटिटी को पा चुका है इन द वर्ल्ड। Our country has its own identity. Clear? So I hope you have understood this chapter. This topic is not at all new to you. You have already learned regarding this chapter in your previous grade. But in this grade, there is a bit more detailed studies. And yes, do remember, case study जो आपको खुद को रीड करनी है। Clear? Okay. So, next session we will take up the exercise of this chapter. Before that, read the chapter till where I have explained in the video and do the homework which is being sent to you with good handwriting and no spelling mistake. If you have liked this video, please click on the like icon. Okay? So let me take your leave now. Bye.